अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम है। इसकी दो तीन रीज़न्स हैं, वो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत ही अहसन इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, कि हर वेस्ट जनरेटर को एक वेस्ट उठाने की, गार्बेज उठाने की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही ऐसा इक़दाम है कि अब ये हो गया है अगर, और ये इसका बिल जो है वो प्रिज्यूमेबली, और व्हाट हैज़ बीन shared with me, or what I know at the time of recording of this video, is that the bill will be added to the electricity bill. We have to be very careful when added to an electric bill, where the operator like LMC may have dues, or local government may have dues outstanding from the electricity provider, and if they adjust this fee into that, whatever we are billing will be a very difficult matter to settle between the intergovernment and departments. What should have happened is that a independent fee collection organization should be set up. Gradually it will become effective. So initially we don't expect that 100% collection will be there. It may start with 50%, go to 60, 70, and maximum threshold of recovery should be not more than 80%. So that way 80% पे अगर हम प्लान करते हैं कि 80% फी रिकवर हो जाएगी, then I think the project will become sustainable, and in about 3 to 4 years it can become profitable also, because of the fact that at this time we are completely relying on the government support. But if we want to make it sustainable, and in long term government doesn't have to allocate huge funds like we did to LWMC, 15 billion Pak rupees to LWMC in year 2023. So all this will be saved, plus the government or the department will make enough reserves for future expansion. So that is one aspect of the fee, which is really a very good step taken, positive step, but implementation has lot of problems. Number one problem is the waste generator. Why should he pay this fee? Because what we are doing, what has been the traditional procedure, and what is happening is that this waste is picked up by the collection company and it is dumped. इसको ले जाकर हम फेंक देते हैं एक ऐसी जगह जो कि इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है। लखोडेर की एग्जांपल लीजिए आप, कि इसमें हम 13 मिलियन टन के करीब वेस्ट डाल चुके हैं। कोई बॉटम लाइनर नहीं है, कोई साइड लाइनर नहीं है, कोई एयर इमिशंस कंट्रोल नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ है कि लीचे की माइग्रेशन अंडरग्राउंड तो वाटर के लिए तो हो रही है कंटेमिनेशन, बट डाउन स्ट्रीम ए ह्यूज एरिया ऑफ द लैंड has been contaminated as a surface water, which you can see standing on all sides of Lakhode landfill except the one side where we have the highway and freeway. So that is a major disaster we have created, contamination of underground water and the surface water due to leachate migration. इसके साथ आपके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि कितना एरिया है जहाँ लीचे फैल चुका है, और उसके अलावा कितना तेज़ी से ये पानी निकल रहा है। सिर्फ ये एक साइड है जहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर तरफ से ये पानी इसी तेज़ी से हर सेकंड निकल रहा है,
और अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। इससे आगे चलिए ज़रा कि एयर इमिशंस नाउ, क्योंकि इस साइट पे, डंप साइट पे कभी कोई सॉइल कवर इस्तेमाल नहीं किया गया, सारा का सारा वेस्ट एक्सपोज टू दी एयर है। इसका मतलब ये है कि एयर इमिशंस आर टेकिंग प्लेस अनकंट्रोल्ड एंड दीज एयर इमिशंस आर so harmful that they are damaging the brain, causing lung cancer, skin cancer, and also they are damaging. And one thing which I forgot is these emissions, and for the people who are working on it, it is causing hepatitis also, because these workers are working in the waste without any personal protection. How difficult it is to provide the personal protection to the workers. So when they go home and there is no procedures, health and safety procedures adopted for personnel and people who are visiting this site. Now air emission is taking place from Lakhodar is evident from the satellite monitoring, and this monitoring is being done by international agencies through satellite. And as a result, you must have read the reports that Lahore on emissions is the worst city in the world. It keeps on changing. Sometime New Delhi becomes the number one, or sometime Lahore, but most of the time it is Lahore. So to mitigate and remediate this, we have to close this landfill. वेस्ट हम ले जाकर इन डंप्स में ना फेंकें तो क्या करें? इसके लिए एक सेफ न्यू इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाना इंतहाई ज़रूरी है, और वो इमरजेंट बेसिस पे बनाना चाहिए। अच्छा, अभी तक ये बना क्यों नहीं? हर दफ़ा हम ज़मीन एलोकेट करते हैं लैंडफिल के लिए, कोई लीगल मैटर आ जाता है, कोई लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं, कोई चैलेंज हो जाता है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को फर्म स्टेप लेना चाहिए कि वो नॉट ओनली के एक 400 एकड़ 500 एकड़ लैंड एलोकेट करें, और यकीन करें कि वो पोजेशन मिल जाता है। अगर LWMC ने बनाना है तो LWMC को, या जिस ऑपरेटर ने बनाना है उसको ये मिल जाना चाहिए, ज़मीन ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। रहेगी तो ये गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट विल बी दी ओनर, बट इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर और ऑपरेटिंग एंटिटी हु इज़ गोइंग टू मैनेज दिस इंजीनियर्ड सेफ डिस्पोजल साइट। जब तक ये साइट नहीं बनेगी तब तक ये हमारे ऑपरेटर्स का ये कहना है कि भाई जब तक साइट नहीं है तो मैं तो यहीं पे डंप करूँगा। तो हम और कंटामिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, हर मिनट कंटामिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये स्टॉप जब होगा कि जब आप पहले एक सेफ डिस्पोजल इंजीनियर्ड लैंडफिल बना दें, उसके लिए ज़मीन एलोकेट करें और ज़मीन का पोजेसन दिलवाएं उस एजेंसी को जिसने के आपका नया लैंडफिल इंजीनियर्ड सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी डेवलप करना है। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि लैंडफिल को बनाने के लिए हमें 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए। ये इंतहाई गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। जो डिज़ाइन, अगर लैंडफिल की पोजीशन 2-3 महीने में मिल जाती है तो लैंडफिल का डिज़ाइन के लिए यू डोंट नीड मोर देन 3 months, and for execution and completing the landfill construction we do not need more than 15 months. So in less than 17-18 months you can start the remediation of the old landfill. जी सर, ये एक इस किस्म का मरबूत प्रोग्राम होगा जो कि हम सबको मिलकर करना है।
इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम लोगों ने जो वेस्ट जनरेट करते हैं, हम जो है ये फ़ीस देने को तैयार हैं और ये देना भी चाहिए, लेकिन सेफ़ डिस्पोजल गारंटी करना और हमारी हेल्थ को बचाना और अंडरग्राउंड वाटर को बचाना, एयर इमिशंस को बचाना, ये गवर्नमेंट का काम है कि इसको गवर्नमेंट को एनफोर्स करना चाहिए। तो हम इस सब्जेक्ट पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इस पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें आपका बहुत ज़्यादा ताउन चाहिए कि सब लोग इसको शेयर करें और मिलके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट में उनसे बात करें और उनको समझाएं कि ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी मौजूदा नस्ल के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, और स्पेशली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो कि अभी आप ये देख रहे हैं कि एक्सेसिव टेम्परेचर और बारिशें और कराची में फ्लड आना और हर जगह फ्लड आना, ये क्लाइमेट चेंज का असर है। अगर इसको हम मिटिगेट नहीं करेंगे, और ये जुड़ा हुआ है आपके डंप साइट से, आपके व्हीकल एयर इमिशन से और दूसरे एयर इमिशन से, तो एक दूसरे व्लॉग में हम इस सब्जेक्ट को आगे एक्सपेंड करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसको देखें और कमेंट्स पोस्ट करें, और इंशाल्लाह हम कमेंट्स पर आपको रिप्लाई करेंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू क्लोज द ओल्ड लैंडफिल्स एंड हैव सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान, अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।